Pitot tubes, then it will include something called head meter. And then we will discuss about Venturi. And the third part will consist of critical insulation things. System. So I will first start with Pitot tubes. Now Pitot tubes is something which is used to find the fluid velocity. For example, it is applicable in many areas. One of the significant area is in aerodynamics, and it is mainly done for safe navigation. The कोई plane जा रहा हो, whenever the plane is going, it is facing air pressure. प्लेन का मूवमेंट कैसे होता है? in this direction or in this direction. दोनों केसेस में it will face an air pressure. So that air pressure is again based upon the air pressure, you will adjust the aircraft pressure. That means the basic thing is that we need to find out at what speed the air is coming. So it is again, the whole thing is again, it can be done with the help of our Pitot tubes. इसके पीछे भी the basic fluid dynamic जो concept है वो है Bernoulli's theorem. और दूसरा है continuity equation. So, what is the Bernoulli's theorem? Conservation of mass, as you have already studied a number of times. So, how do we write a Bernoulli's equation? We write it in this fashion. We write it as P plus half rho g square plus rho g. Rho GH is a constant. Okay, it's a constant. Now, यहाँ पे ये जो pressure है, as you know, this is the energy per unit volume. So this is pressure energy. ये जो pressure है, we call this pressure as static pressure. S stands for static. Okay. What is the static pressure? ये जो constant मैंने लिखा है, इस constant की जगह पे write another term PT, where PT stands for total pressure. In दोनों में there is a basic difference between a static pressure and a total pressure. What is the basic difference? Static pressure is applicable for a streamlined flow. It is a flow which is streamlined, which is not having any obstruction, steady flow. So, suppose एक पाइप से
fluid flow हो रहा है, there is no obstruction, so I say that pressure is static. ठीक है. How do I find out the pressure? और मान लो इसका अगर कोई क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ है ऐसे करके, so pressure will be different here, है ना? So how do I find it? I find the pressure by simple change in pressure is equal to rho g. So मैं यहाँ पे अगर ये ऐसा इसको ऐसा एक स्ट्रक्चर में चेंज डाल देता हूँ यहाँ पे. So if we give you height, इसमें height मिलेगा यहाँ पे. So this is H1. और अगर मैं सेम चीज यहाँ पे करूँ, सेम चीज में अगर यहाँ पे करूँ तो दिस विल गिव मी अनदर हाइट H2. There will be a difference in height delta H. Now, how is the velocity related to that? एक इक्वेशन इसको बोलता है कोऑर्डिनेट इक्वेशन. कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या बोलता है? A1 B1 is equal to A2 B2. और दूसरे इक्वेशन क्या बोलता है? एज आई हैव रिटन P प्लस हाफ G प्लस रो जी. नाउ इन दोनों केसेस में, वन इज द केस विद एच एंड अदर केस H1, मैं अगर दोनों में अगर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करता हूँ तो वन विल बी P1 E1 GH1, दूसरा होगा P2 प्लस ओ रो यहाँ पे जी नहीं होगा, मैं बार बार यहाँ पे जी ठीक है. दिस इज व्हाट आई कैन राइट. मान लो कि कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ. मान लो इट इज गोइंग लाइक दिस. In that case, H1 will be equal to H2. ठीक है. So I can remove this term rho g H1. इसको मैं हटा सकता हूँ. Simply write P1 plus half rho g1 square ठीक है. If somehow ये जो fluid flow हो रहा है, इस fluid velocity में, if somehow मैं इसको stop कर देता हूँ, I make the velocity, I make the, इसका मान लो this is the second velocity जब stop करता है, this is equal to 0. ठीक है. तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं? स्टैग्नेशन. जैसे English class में आप जानते हैं, if the velocity goes to 0, then we face something called stagnation. है ना?
No, no, दो वेलोसिटी मतलब the second velocity is 0. We have made the velocity stop here. हम लोग यहाँ हम लोग स्टॉप कैसे करेंगे? ऐसे तो स्टॉप नहीं कर सकते. What we do here, हम लोग ये जो हाइट के मैनोमीटर या हेड फ्लो भी बोलते हैं. ये जो this is called head flow, head meter और मैनोमीटर. ये वाला जो हेड मीटर है, मैं अगर इसको यहाँ पे अटैच कर दूँ तो एक तरफ से ये स्टॉप हो गया ना, दिस वेलोसिटी गेट स्टॉप. तो सेकंड, तो द वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. आई मीन द वेलोसिटी नो लॉन्गर एक्सिस्ट. इसी को मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के बेसिस पे. बट यहाँ पर भी एक हाइट जनरेट होगा. देयर विल बी आल्सो हाइट हियर h. सो इन दिस केस ये वाला सेक्शन 0 हो गया. So only I have what I have with me this PT. I can say that this is the stagnant pressure. Stagnant pressure, that means the total pressure PT in the condition of velocity going to 0, it gets converted into PTS. PTS stands for the total pressure which has got stagnant, है ना. तो ये वाला कंडीशन हो जाए तो आई कैन सिंपली राइट हियर हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 माइनस p1, दैट इज डेल्टा p. ठीक है, डेल्टा p लिख सकता हूँ. दिस डेल्टा p अगेन विल बी इक्वल टू दिस हाइट रो g h. ओके, तो इसको मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो आई कैन राइट दिस वन एज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू 2. दिस इज एक्चुअली दिस एल शेप्ड ट्यूब, इसी को हम लोग बोलते हैं डॉट ट्यूब. ये फ्लूइड वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है. So the total pressure without changing any cross section, if we suddenly stop the total pressure, उससे जो height generate हो रहा है, from that we can find out. अच्छा, ये वाली इक्वेशन तुम लोग को जाना बचाना लग रहा है ना. This is also the Torricelli's equation. जब कोई ऐसे बड़ी फिश से निकलता है यहाँ from there, यहाँ पे v is equal to PTH होता है. So it is actually the opposite of Torricelli's equation. वहाँ पे it was flowing from reservoir से नीचे गिर रहा था. यहाँ पे from free flow it is going in the form of a reservoir भी बोल सकते हो. So it is the inverse of Torricelli. Inverse बोलना गलत होगा. Inverse means different. Equivalent to Torricelli. Inverse सो हमारे पास अभी 3 टाइप के प्रेशर है. 3 टाइप के प्रेशर. इट इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट. कितने टाइप के प्रेशर है? एक है स्टैटिक प्रेशर PS. ठीक है. एक है इसको डायनामिक प्रेशर. एक्चुअली ये थोड़ा सा वर्ड कंफ्यूजिंग है. P स्टैटिक और इसको डायनामिक प्रेशर बोलते हैं बिकॉज द फ्लो इज डायनामिक. दैट मीन्स V is not equal to 0. But that case it is called dynamic. The flow is dynamic. The pressure is not dynamic. उसके बाद दूसरा है when total pressure. ठीक है. Total pressure is PS plus half G square plus G. This is the total pressure. Okay. And then we have PTS, stagnant pressure.
stagnant pressure. When V is equal to 0. Now we know that केवल equation हमारे पास है 2pH तो इसको मैं I can write this equation in this form 2 difference between total pressure and static pressure by I can also write this equation in this form delta P. ठीक है? So if I know the total pressure and if I also know the static pressure, I can find out with what velocity the fluid is flowing. तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है एरोडायनामिक्स में टू फाइंड आउट एयर स्पीड. अभी दो चीज़ों को एक साथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो फॉर दैट व्हाट दे डू, यहाँ पे एक्चुअली हीट की बात है. ये क्या करते हैं ऐसा एक टू मेक श्योर दैट एल शेप ट्यूब जैसे मैंने कहा था, एक ओपनिंग होता है, इसके साइड से सेंटर से दे मेक द एयर टू फ्लो ऐसे करके और उसको वो यहाँ पे जाके स्टॉप कर दो. सो दिस बिकम्स द स्टैग्नेंट स्टैग्नेंट P total which has got stagnant अंदर से. लेकिन स्टैटिक प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए आई हैव टू मेक श्योर दैट द फ्लो इज कंटिन्यूअस. तो उसके लिए क्या करते हैं, साइड से वो लोग ऐसे चैनल बनाते हैं. They don't stop it, they make it flow. तो बीच से जो जा रहा है, जो प्रेशर, बीच वाला प्रेशर जब ये अंदर जाके चैनल हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं PT. और जो साइड से जो प्रेशर आ रहा है, these two pressure, this one and this one, so they are called PS. So that's how we can actually find out both PT and PS. ठीक है? जो फ्री फ्लोइंग है, उससे हम लोग को PS मिलेगा. और जो which has been stopped, उससे हम लोगों को क्या मिलेगा, स्टैग्नेंट प्रेशर मिलेगा. तो यहाँ से we get a height from so this is how we actually get a height. प्रेशर इन दोनों प्रेशर को माप के we actually find out the velocity of the air. वहाँ पे उसका स्टॉप नहीं होगा, नहीं वो ऐसे बनाते हैं कि ऐसे कि स्टॉप ना हो. तो डिज़ाइन में कुछ ऐसा होता है कि ये अंदर जाके ऐसे बाहर दूसरे चैनल्स में आ जाए. श्योर दैट फ्री फ्लो कंटिन्यूसली फ्री फ्लो होता है. अदरवाइज तो ये भी तो स्टैटिक ही हो जाता है. जैसे हम लोगों ने उसको स्टॉप कर दिया, बिकम्स स्टैटिक. सो दैट इट इज नॉट स्टैटिक, वी मेक इट फ्लो इन दिस वे. अच्छा, the same concept is used in another type of instrument या another type of system, इसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर. वेंचुरी मीटर में we don't make the fluid stop, हम fluid को हम लोग बहने देते हैं, but only thing is that we make the cross section, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं. जैसे मैंने प्रीवियसली कहा था कि यहाँ पे अगर एक हाइट तुम दे दो, यू गेट अ हाइट h1, यहाँ पे तुम दे दो यू गेट अ हाइट h2. देयर इज अ डिफरेंस इन हाइट डेल्टा h, दिस करेस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर डिफरेंस.
delta H is rho G delta H will give you delta P. तो यहाँ पर भी सेम इक्वेशन यूज होगा. एग्जैक्टली सेम इक्वेशन यूज होगा. बट इस ये जो डेल्टा P है, ये डेल्टा P like in the previous, unlike the previous case, it is not the difference between static and total. ये दोनों ही static pressure, but two different regions. Suppose you are getting a P1 here and a P2 here. So it will be delta P corresponds to P2 minus P1. Because यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने चेंज करके प्रेशर चेंज किया है. Okay, so this will be equal to इसके अलावा since we have changed the cross section का इफेक्ट भी होगा, because A1 B1 is equal to A2 B2, A1 B1 is equal to A2. क्रॉस सेक्शन का सिंप्लिफिकेशन कर दो, it will be 1 minus A2 minus A1. Due to the change in cross section. ये बर्नौलीज इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आ जाएगा. P1 प्लस हाफ रो E1 स्क्वायर प्लस रो G H1 is equal to P2 plus half rho square rho G H2. तो यहाँ पे फाइंड आउट द वैल्यू. सो ये V2 बेसिकली हम लोग यहाँ पे V2 फाइंड आउट करेंगे. दिस इज एक्चुअली इक्वल टू V2. जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले को यहाँ से इक्वेट करोगे तो यू विल एक्चुअली गेट दिस वन. सो क्या मिलेगा पहले हाफ रो V2 स्क्वायर इक्वल टू P2 माइनस P1. यहाँ पे हो गया सॉरी नेक्स्ट पेज पे करते हैं. P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो H1 is equal to P2 plus half रो स्क्वायर प्लस तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर is equal to P1 minus P2 plus rho G H1 half rho. अच्छा फिर ये since A1 B1 is equal to A2 B2, इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि B2 will be equal to A2 sorry A1 by A2 into B1. तो इसको मैं अगर यहाँ पे लेके आता हूँ फिर I can write as sorry B1 is equal to A2 by A1. If I put all the equations, all the things, I will ultimately get V2 as equal to
माइनस था ना, माइनस माइनस। इस इक्वेशन से दूसरा ऐसे वेंचुरीमीटर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फ्लूइड वेलोसिटी के लिए फाइंड आउट हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला फ्लूइड वेलोसिटी, खास करके लिक्विड वेलोसिटी। और दूसरा इसका जो ऑडिक इफेक्ट है मास फ्लो में, मास फ्लोमीटर का मतलब है कि वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक है। तो वॉल्यूम पर सेकेंड फाइंड आउट करने के लिए दैट इज क्यू, क्यू से Q is simply equal to the cross sectional area into the velocity। तो बाहर वाला क्योंकि मुझको अगर फाइंड आउट करना है तो आई विल फाइंड इट आउट फ्रॉम द सेकेंड क्रॉस सेक्शन जहाँ से निकल रहा है, तो simply transfer this equation here, so that's why I can find out the mass flow, how much of mass is flowing out from the system, ठीक है। Yes. So that is the second part। उसके बाद जो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ टॉपिक जो बचा हुआ है, एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा हुआ था दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल इंसुलेशन। इंसुलेशन जैसे कि हीट लॉस कम हो, सो दैट देयर इज लेस heat loss। मतलब हीट लॉस मतलब द थर्मल रेजिस्टेंस जिसमें ज़्यादा RTH, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मतलब इलेक्ट्रिकल फ्लो को हम लोग रोक देते हैं। इंसुलेटर किसको बोलते हैं? इंसुलेटर मतलब थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास, सो दे हैव गॉट हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सेरामिक मटेरियल्स, मेटल्स में इजीली पास हो जाता है। उसी तरह से वी हैव सम मटेरियल्स जहाँ से थर्मल एनर्जी ऑल्सो कैन नॉट पास, तो दैट इंक्लूड्स सेरामिक्स एज वेल। Okay, so metal is also is a conductor of both electricity and temperature। इंसुलेशन करना मतलब मान लो एक पाइप, एक केबल है, ठीक है। दो तरह के इंसुलेशन होते हैं, इनफैक्ट तीन तरह के इंसुलेशन होते हैं। एक है देयर इज अ वॉल, जस्ट सिंपली वॉल है, इसके ऊपर तुमने कोई इंसुलेटिंग मटेरियल दे दिया, कोई ग्लास या एनीथिंग सेरामिक इसके ऊपर दे दिया, तो इट्स कॉल्ड वॉल इंसुलेशन और प्लेन इंसुलेशन। ठीक है। दूसरा है इफ देयर इज अ केबल, केबल को कैसे इंसुलेट करोगे? ऐसे ऊपर में होगा और साइड में होगा, ठीक है। और एक होता है दैट इज नॉट वेरी कॉमन, दैट इज गोइंग टू हैव अ स्फेरिकल शेप, स्फीयर। You need to, इसको भी simply you need to put it। So there are तीन geometrical shapes हम लोगों ने ले लिया। तीन में हम लोगों ने बाहर से we provide a different material having lower, higher thermal resistance so that heat loss is less। अच्छा, thermal resistance याद है किसको बोलते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस, हाँ, V is equal to IR जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज V? क्या? व्हाट इज इट इज इसका थर्मल काउंटरपार्ट क्या है? R का तो RTH है। टेम्परेचर डिफरेंस इज V
part, heat flow is Q. So RTH is equal to delta T, temperature difference, divided by the heat flow. Okay. Now you know that there are three ways by which heat flows, heat transfer takes place. एक है conduction, convection and radiation. तो तीनों के केसेस में thermal conductivity, thermal resistance अलग अलग होगा. So I can have something called thermal resistance for conduction, CND. I can have thermal resistance for convection. I can have thermal radiation, thermal resistance for radiation. अच्छा, इन तीनों में हीट लॉस सबसे कम किस में हो सकता है? रेडिएशन में. Why? Because it is electromagnetic waves. हीट लॉस इसमें सबसे कम है. लोएस्ट हीट लॉस. सबसे ज़्यादा किस में है? कंडक्शन में. तो इंसुलेशन जब हम करते हैं तब हम वी मेक श्योर इन सम केसेस हम लोग वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होगा? बिकॉज मीडियम वैक्यूम तो देयर इज नो मीडियम, ऑलमोस्ट नो मीडियम, नॉट एग्जैक्टली. So, if there is no medium, the only way by which heat loss can take place is through radiation. Heat loss through radiation. Because in the case of heat loss through radiation, जो important parameter radiation में आता है, that is called emissivity. Emissivity मतलब you compare the emissive power of any material with respect to a black body. A black body is the one where the emissivity is equal to 1. Usually emissivity सारे मिक्सचर्स का बहुत लो होता है, 0.034 compared to black body. इसीलिए अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं तो उससे हीट लॉस होना मुश्किल होगा. अगर वैक्यूम क्रिएट नहीं भी होता है तो फिर भी देयर आर सम वेज बाय विच वी कैन रिड्यूस द हीट लॉस. वो है कि वी चेंज द इंसुलेशन थिकनेस. ये जो इसका जो थिकनेस है इंसुलेटिंग मटेरियल का, इसको अगर हम इंक्रीज करें देन ऑल्सो वी कैन रिड्यूस द हीट लॉस. लेकिन इसमें यही में क्रिटिकल थिकनेस का कॉन्सेप्ट आता है. ये देखा जाता है कि इंसुलेशन थिकनेस R, when you allow an insulation thickness to be allow an insulation to be on any heat transferring structure, initially in some structures initially heat loss ज़्यादा होता है. The insulation starts to take place when the thickness or whatever dimension reaches a certain critical thickness. उसी के बाद से heat loss कम होना चाहिए. ठीक है. इसको थोड़ा सा कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं बोलूँ क्रिटिकल थिकनेस critical insulation thickness.
it is RC is equal to K by H. What is K? K is the Q is equal to minus Ka dt by conductivity constant. Or convection constant. ठीक है, इसका डायमेंशन क्या है? K का डायमेंशन है क्या था? Watts per meter to Kelvin. और H का डायमेंशन है ये कौन सा कंडक्शन हो रहा है? ये सॉरी कौन सा तुम्हारा हीट लॉस हो रहा है? किस टाइप का हीट लॉस हो रहा है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, वेरिएशन, फूरियर्स लॉ है ना? और कंडक्शन ये तीनों हीट कंडक्शन कांस्टेंट्स हैं. हीट ट्रांसफर कांस्टेंट है, हीट कंडक्शन क्या बोलते हैं नाम भूल रहा हूँ. That means the constant which defines the conduction. Thermal conductivity constant, right? Thermal conductivity constant. What is the thermal convection constant? For conduction, this is called convection. Radiation में जैसे सिग्मा, स्टीफन बोल्ट्जमैन constant. Now ये जो conduction conduction है, that means the thermal resistance due to conduction, this is equal to d by K into A. Convection जो है that is simply equal to 1 by H into A. A is the cross sectional area and B is the क्या dimension जितना तक फ्लो हुआ, तो कंडक्शन यहाँ से यहाँ तक फ्लो हुआ है ये वाला. फिर dt by dx जब हम भूल जाते हैं, फिर dt by dx, this is the dx up to which the conduction heat flow has taken place. अच्छा, इसका जो if I take the ratio of R conduction by R convection, क्या मिलेगा उसको? d by Ka into HA by HA. So this is equal to A. कैसे आएगा? think that I have like dH by A. ये रहेगा ना? K से dH by K. हाँ, dH by K. H by K
conduction divided by R convection into D. So if R conduction is equal to R convection, then ये जो RC है critical insulation thickness, सर वो डी नीचे रहेगा ना, प्लस डी नीचे हाँ D नीचे जाएगा। कंडक्शन के साथ बात करते हैं। अच्छा फिर ये R convection by R convection by meaning इसका same ही है, तो it will be R convection divided by R conduction into D. ठीक है, इसका मतलब है if R conduction is equal to R convection, then RC is equal to D. तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्रिटिकल थिकनेस है, इट इज दैट थिकनेस जिसके ऊपर मेरा कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस एक्टिवेट होगा और उससे नीचे मेरा कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस एक्टिवेट होगा। इसीलिए अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को। ओके, देयर इज अ हॉट वाटर लाइन। उसमें ये है 0.2 watts per millikelvin, sorry मीटर केल्विन, एंड H है 10। ठीक है, इसका शेप क्या है? सिलिंड्रिकल है। तो यहाँ का क्रिटिकल थिकनेस पर कितना होगा? मीटर, ये मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब कितना? 20 मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा अभी इस केस में मैं एक अगर इंसुलेशन करता हूँ, मान लो मैं इसको इंसुलेट कर देता हूँ और इंसुलेशन का जो थिकनेस है दैट इज 5 मिलीमीटर। Whether it will work or not, that is the question. It will not work because my insulation thickness has to be more than 20 millimeters. 20 millimeters के पीछे अगर मैं इंसुलेशन देता हूँ तो इसका मतलब है मेरा कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस एक्टिवेट नहीं हुआ। आई एम स्टिल इन द रिजीम ऑफ कंडक्टिव ट्रांसफर, बिकॉज एज यू हैव सीन दैट इट इज R convection by R convection into D. इसलिए I have to make sure that जो मेरा हीट फ्लो हो रहा है that is through convection, क्योंकि कन्वेक्शन से हीट फ्लो और हीट लॉस कम होता है, बिकॉज इन द कन्वेक्शन यू रिक्वायर द होल मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसफर्ड, बट इन द केस ऑफ कंडक्शन बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल द हीट गेट्स ट्रांसफर्ड। सो बेसिक आइडिया इज टू make the system or make the system fall in convective mode.
फ्रॉम कंडक्टिव। और कन्वेक्टिव और अगर वैक्यूम होना पॉसिबल है और रेडिएटिव, वो किसी भी तरह से कंडक्शन कन्वेक्टिव मोड से हटके वी हैव टू गो टू द रेडिएटिव मोड और कन्वेक्टिव मोड। तो उसी के लिए जो मिनिमम थिकनेस जरूरी है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिकनेस। अभी नाउ ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए थे ना, 3 शेप्स के बारे में कहा। एक था वॉल, दूसरा था ऐसे नॉर्मल केबल और तीसरा था स्फीयर। इस केस में इट इज K by H, K by H, नॉर्मल जो केबल था या केबल या पाइप। वॉल के केस में देयर इज नो क्रिटिकल थिकनेस एट ऑल। क्रिटिकल थिकनेस इज इंफिनिटी। तब जितना मोटा इंसुलेशन करोगे देयर इज नो पर्टिकुलर थिकनेस कि जिससे बाद से तुम्हारा हीट लॉस कम होना शुरू हो। जितना भी छोटा, जितना भी पतला तुम इंसुलेशन दोगे, द हीट लॉस विल एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम देयर। देयर इज नो क्रिटिकल थिकनेस। स्फीयर के केस में, खासकर इसके केस में सिलिंडर के केस में है K by H। स्फीयर के केस में वो अब हो जाता है K by 2H। 2H क्यों होता है? 2H होता है, इसके लिए एक सिंपल एक मैथमेटिक्स है। स्फीयर convective heat transfer is heat raised to 1 by HA। ठीक है। इस केस में मैं सपोज मैंने यहाँ पे इंसुलेशन दिया है, तो इसका थिकनेस मतलब फ्रॉम सेंटर इसका थिकनेस है R2। ओके, इसका थिकनेस है R2 और इनिशियल स्फीयर का थिकनेस है R1। तो इस केस में जो कन्वेक्टिव फ्लो हो रहा है दैट इज थ्रू द आउटर रेडियस, आउटर एरिया। So that is why it will be equal to 1 by H into कितना होगा 4 by R2 square, R2 square। कंडक्टिव ट्रांसफर क्या होगा? कंडक्टिव ट्रांसफर क्या होता है? डायमेंशन D क्या था? D by KA। यहाँ भी D is the thickness, कंडक्शन कितना होना है। व्हाट इज D? D is simply R2 minus R1। ठीक है ना, आउटर जो स्फीयर का जो आउटर सरफेस है वहीं से तो जाएगा। व्हाट इज A? A इज होगा 4 by R स्क्वायर होता था, तो 4 by R स्क्वायर की जगह पे 4 by R1 R2, 4 by R। ये होगा है। ठीक है, तो मेरा टोटल थर्मल कंडक्टेंस is R convection conductance plus R conduction resistance। इसको if I would like to find out the value where my critical conduction starts, तो कुछ नहीं, मुझको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा
with respect to R2, and I have to make sure that this is equal to 0. So only this is the place where your critical thickness. So this happens at R is equal to RC. ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ, तो आई फाइंड द RC एज इक्वल टू P by Q instead of P by H. अच्छा, ये हो गया स्फीयर के केस में। सिलेंडर के केस पे जो हम लोग को मिल रहा है R by H, that is also coming from the same principle. सिलेंडर मतलब केबल ऐसा हीट पाइप, इसका एरिया कितना होता है? बाहर वाला एरिया 2 पाई आर है, तो R convection is equal to 1 by H into 2 pi R. The Q is equal to minus KA dt by dx. Okay. So this is again equal to minus k, यहाँ पर मैं 2 by R L dt by dx. Into constant टाइम से भी लिख नहीं रहा। कांस्टेंट क्या होगा? 1 by k into 2 by l। तो इसका ये कितना हो जाएगा? तो फॉर टेम्परेचर T1 एंड T2 मान लो, डेल्टा T टेम्परेचर चेंज हुआ है और करेस्पॉन्ड में उसका रेडियस R1 एंड R2 है, ln R2 by R। by L of ln R2 by R1. So we will do the same practice. So total conductance, total is equal to R induction plus R convection. So इसको ऐड करोगे and then you perform this operation once again. So इससे जो मुझे R मिलेगा, it's find that here is equal to P by H. This gives it the critical. So it is that thickness at which RT total is becoming 0. So the rate of change of conductance is between 0. मतलब एक थर्मल कंडक्टिव मोड से जब conductive mood, वो जो transition point, that is considered to be a maximum or minimum. This is maximum or minimum. This is this point only find out. ठीक है? Okay. So that's it for today.